question here. Find half range cosine series for fx equal to sin x in 0 to pi. And there are two deduction asked. This question has been asked so many times in the exam and as lately as November 19 comms को भी आया था 8 marks के लिए. Okay, let's see how it is done. So its question is very clear. Question में clearly लिख दिया half range cosine series करनी है, मतलब a0 an solve करना है, bn solve नहीं करना है. So let us start with the question. We have here what is fx given to us. Let us write that. f of x दिया हुआ है sin x. तो fx has been given as sin x. तो हम लोग start करते हैं with a0. भाई हाफ रेंज में a0 का फॉर्मूला a0 is equals to we have 1 upon l with integration 0 to l and having function fx और इसका इंटीग्रेशन करना है dx. Okay, तो let us substitute a0 is equals to 1 upon l. l की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पाई है. इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर पाई हो जाती है और फंक्शन दिया हुआ है sin x dx. तो we can easily solve. sin x is an easy function to integrate. a0 equal to 1 upon pi. sin x का इंटीग्रेशन करते हैं. sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x. लिमिट्स आपने पुट करनी है 0 टू पाई. लिमिट्स पुट करने लगते हैं तो इट बिकम a0 is equals to 1 upon pi and inside the bracket minus cos of pi हो जाएगा minus cos of 0 बन जाएगा. अपर लिमिट pi and lower limit 0. We know that cos pi की वैल्यू -1 होती है. तो we get minus of -1 माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो इवेंचुअली दोनों +1 ही हो रहे हैं. +1 ऐड हो जाएंगे और आंसर a0 का मिलता है. a0 is equals to a0 equal to 2 upon pi. This is our first answer a0. तो लीजिए a0 मिल गया. We highlight this a0. Next thing we have to find is an. हाफ रेंज an का फॉर्मूला होता है 2 upon l having integration 0 to l with the function inside fx and the cos angle n pi x by l dx. Right, substitute करता हूँ इसमें. an equal to it has become 2 upon pi. इंटीग्रेशन का लिमिट भी 0 to pi. इंटीग्रेशन का फंक्शन इज देयर sin x and the default term is cos nx. So we have 2 times sin x cos nx. What we should do now is take 2 inside. भाई 2 को inside ले लेते हैं तो ये प्रॉपर 2 sin a cos b बन जाएगा. Right? If we take 2 inside, it becomes 2 sin x cos nx dx. 2 sin a cos b आपको याद दिला दूं. 2 sin a cos b formula was sin a plus b plus sin of a minus b. Okay, I'll highlight this याद रखने के लिए. 2 sin a cos b. This is applicable here. an is equals to 1 upon we get pi. इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन हो रहा है. 0 to pi. 2 sin a cos b बनता है sin of 1 plus nx plus sin of 1 minus nx dx. sin of a plus b. देखिए a की वैल्यू क्या है 1x, b की वैल्यू क्या है nx. तो 1x plus nx is 1 plus nx. 1x minus nx is 1 minus nx. Now we should integrate. an is equals to 1 upon we get pi. अब इंटीग्रेशन करते हैं. भाई किसी भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है अपॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन करना पड़ेगा कोएफिशिएंट उसका. वैसे ही दूसरे साइन का भी इंटीग्रेशन कॉस होता है, डिवाइड बाय आपको 1 माइनस एन करना पड़ेगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इट बिकम्स एंड द लिमिट वी नीड टू पुट इज 0 टू पाई. एक और बात बता दो, यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा है cos of 1 प्लस या माइनस n pi is always equal to minus of -1
raised to n. Remember this formula. Cos of 1 plus n pi, cos 1 minus n pi. जब से टाइप 2 में आ गए ना तो ये वाली क्वांटिटी बार बार आएगी. Okay, so we have here an equal to, I am going to write the limits now. Substitute the limit. अपर लिमिट, पहले ये पूरा मैं टर्म कॉपी कर लेता हूं एज अपर लिमिट एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस x की जगह पर पाई, x की जगह पर पाई. फिर यही टर्म वापस कॉपी कर देता हूं. नाउ आई नीड टू रिप्लेस x की जगह पर 0, x की जगह पर 0, सॉरी x की जगह 0, तो cos ऑफ 0 बन जाएगा. cos ऑफ 0, cos 0 वी नो 1 होता है ना. cos 1 plus n pi, cos 1 minus n pi नया था, but cos 0 तो पहले से जानते हैं, it is 1. So 1 upon pi, and inside the bracket, when I substitute the value of cos 1 plus n pi, which is minus of minus 1 raised to n, and minus is already there, so we get minus 1 raised to n divided by 1 plus n. Then plus again minus 1 raised to n, and it is divided by 1 minus n. फिर माइनस माइनस प्लस cos 0 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, फिर cos 0 का वैल्यू 1 बट डिवाइडेड बाय 1 माइनस n. सो दिस इज व्हाट वी गेट. क्या n ऐसे ही लीव कर देना है? नो नो, डोंट डू दैट. यू हैव टू कंबाइन द टर्म्स टुगेदर. कौन कौन से टर्म अंडरस्टैंड? एक है 1 प्लस n वाले टर्म, वो साथ में लेना है, और एक है 1 माइनस n वाले टर्म्स, वो साथ में लेना है. 1 प्लस n वाले टर्म्स कौन से हैं? minus 1 raised to n and plus 1, the numerator. So we must write them together. Minus 1 raised to n plus 1. Similarly, 1 minus n वाले term, वो भी same है. 1 minus 1 raised to n plus 1. So they both are same, like terms. Why don't we take them common outside? Yes, do that. Take minus 1 raised to n plus 1 common outside. Divide by pi. What remain in the bracket? In the bracket 1 upon 1 plus n रहता है और 1 अपॉन 1 माइनस n रह जाता है. तो वी टुक माइनस 1 रेस टू n प्लस 1 कॉमन आउटसाइड. अब ये 1 माइनस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप. अगले स्टेप में ये फर्स्ट तो 2 मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम ब्रैकेट के अंदर का सोल्यूशन करते हैं. ब्रैकेट के अंदर वी गेट 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n एज न्यूमरेटर. You know what's denominator going to be? 1 plus n into 1 minus n. A plus b into a minus b. इन द न्यूमरेटर माइनस n प्लस n तो कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में बन जाएगा 2. इज इट? न्यूमरेटर में बन जाएगा 2. 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इंटू 1 माइनस n क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. भाई ऐसा भी लोग लिखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो ये बन गया an. दिस इज आवर an वैल्यू. वी विल हाईलाइट इट. ये an की वैल्यू तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी सीखा था. दिस इज नॉट वैलिड फॉर 1. n की वैल्यू 1 होने के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर बिकम्स 1 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 0 होने का मतलब पूरा एक्सप्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये केस में क्या करते हैं, अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आ जाए जो हमेशा साइन कॉस के टाइप में होगा ही, आपको a1 सॉल्व करना पड़ेगा अलग से. a1 कैसे सॉल्व करेंगे? भाई यही an का फॉर्मूला लेंगे, यही an का फॉर्मूला, बस इसमें चेंज ये करेंगे कि n की जगह पर 1 आ जाएगा. n की जगह 1 डाल दो तो an का फॉर्मूला ही a1 के काम आ जाएगा. तो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस. a1 इज इक्वल्स टू taking 1 upon pi outside and getting 2 inside. For what? To so that it can become a formula of 2 sin x cos x. 2 sin x cos x एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? लिख देता हूं. 2 sin theta into a cos theta equal to sin of 2 theta's formula. We are going to apply this over here. sin 2 theta का फॉर्मूला बन जाएगा. तो a1 is equals to, it's 1 upon pi integration from 0 to pi. The term has become sin 2x. इंटीग्रेट करना है sin 2x को, वो तो इजी इंटीग्रेशन होता है यार. 1 upon pi as it is
साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड लिमिट्स नीडेड टू बी पुट 0 टू पाई। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इनसाइड द ब्रैकेट, फर्स्ट लिमिट x की जगह पाई पुट किया तो माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 अपॉन 2। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। अरे ये तो 0 हो रहा है। यस एग्जैक्टली, a1 is coming out to be 0, not a0, sorry, a1 is coming out to be 0। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यू मस्ट बी रेडी विद दिस दैट कि हमेशा साइन कॉस के प्रॉब्लम में ना a0 an फिर a1 सॉल्व होगा और कभी bn हुआ तो b1 सॉल्व होगा। इसके लिए बस आप मेंटली प्रिपेयर रहना है। 10 लेट मी राइट द फोरियर सीरीज। अब fx इक्वल द सीरीज बिकम a0 प्लस नेक्स्ट टर्म होएगा a1 cos pi x by l plus summation now, and remember that summation starts from 2 to infinity. Remember this, an cos of n pi x by l। ये बहुत कॉमन बात है इन साइन कॉस प्रॉब्लम्स। जब से टाइप 2 में आया ना, ये होने लगा है कि an के बाद a1 फाइंड करना पड़ा है और समेशन 2 से स्टार्ट होने लगा है। यस, ये कॉमन बात है बहुत टाइप 2 के अंदर। तो फंक्शन sin x दिया था, a0 क्या दिया था, a0 क्या मिला था, a0 we got 2 by pi, we got a0 2 by pi, तो we substitute that 2 by pi। फिर a1 का वैल्यू 0 हो गया, cos pi x by l cos x हो गया because l is pi, और summation from 2 to infinity, what is the an value we got। एक बड़ा सा इक्वेशन है, लिख लेते हैं पूरा। ये देखिए, ये पूरा बड़ा सा इक्वेशन है, that I substitute here n into cos nx। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आंसर है। पूरी फोरियर सीरीज तो बना दिया भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है इसका सोल्यूशन, इनका डिडक्शन। 2 डिडक्शंस है देयर। पहले डिडक्शन में बात समझ लेते हैं। ये 1.3 नहीं है, अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्चुअली 1 into 3। ये 3 into 5 है, ये 5 into 7, रिमेंबर दैट। तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्या मतलब इसका समझेंगे। तो व्हाट वी शुड डू इज, लेट अस फर्स्ट एक्सपांड दिस सीरीज sin x इक्वल टू 2 अपॉन पाई, तभी समझ में आएगा कि ये समेशन कैसे क्या बना हुआ है। प्लस ये नाउ एक्सपांड करते हैं हम। पहली बार n की जगह पर जितने भी टर्म्स है ना, मैं ये पूरा कर लेता हूँ कॉपी। जितने भी n है, सब n की जगह पर अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि मुझे स्टार्ट 2 से करना। जितने भी n है मैं इसकी जगह 2 डाल रहा हूँ, n की जगह पर 2 डाल रहा हूँ। ये एक पार्ट हुआ। प्लस वापस मैं लिख रहा हूँ और n की जगह पर 3, n की जगह पर 3, एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू पुट n की जगह पर 4। तो आई गेस मुझे अभी आगे समझ में आ जाएगा। आई डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरी टर्म। 2 टर्म से मुझे आइडिया मिल जाएगा व्हाट द टर्म्स गोइंग टू बी। सो आई राइट इट फर्दर। sin x इक्वल टू sin x, you see sin x equal to 2 upon pi plus let us understand the first term। भाई पहला ही टर्म सबसे पहले -1 का स्क्वायर हो जा रहा है। -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 + 1 हो जाता है 2। द न्यूमरेटर दिस पार्ट इज बिकमिंग 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, तो आई गॉट अ न्यूमरेटर 4। डिनोमिनेटर में एक तो पाई है, उसके बाजू में व्हाट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सी दैट। कैलसी में सॉल्व करके देखो या ऐसे ही सॉल्व कर देखो। 1 - 4 से बन जाएगा -3, यस, और बाजू में आ रहा है cos 2x, राइट। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, प्लस। यहां पर क्या हो रहा है, -1 का क्यूब इज -1, -1 + 1 0, -1 + 1 0 होने से दिस एंटायर एक्सप्रेशन बिकम 0। यस, द एंटायर एक्सप्रेशन बिकम 0। पॉसिबली व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टर्म, अब हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। वहां पर आ जाएगा -1 raised to 4, -1 raised to 4 से 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, जैसे पहले भी बना था। डिनोमिनेटर में पाई तो है, मल्टीप्लाइड में क्या आएगा, अंडरस्टैंड।
यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर था, इट बिकेम -3. ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉसिबली गोइंग टू बी? 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. 1 माइनस 16 हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा -15. और बाजू में कौन सा कॉस आएगा? कॉस 4x आएगा. उसके बाद जीरो हो जाएगा दोस्त. उसके बाद 4 अपॉन वी आर गोइंग टू हैव अनदर पाई. और पता है क्या टर्म बनेगा भाई? पहले -3 बना, -15 बना, यहाँ क्या बनेगा? लॉजिक क्या हिसाब से आ रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज -3. 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर became -15. 1 square minus 6 square, that is going to become -35. और ये हो जाएगा cos of 6x. Now we don't need to write anymore. We have understood the sequence. What is happening? n की वैल्यू जब इवन नंबर्स आ रही है तब ये एग्जिस्ट कर रहा है. n की वैल्यू जैसे ही ऑड हो जाती है, -1 का पावर ऑड हो जाता है, तो -1 + 1 विल बिकम 0. इसीलिए cos 3x आपको 0 दिख रहा है. cos 5x वाला पार्ट 0, cos 7x वाला पार्ट 0, cos 2x, cos 4x, cos 6x will exist, 6x will exist. और लिखते हैं sin x equal to 2 upon pi. I am getting +4 plus in the numerator 4 cos 2x. अब इसको सही तरह से लिखते हैं 4 cos 2x upon -3 pi. उसके बाद 4 cos 4x upon -15 pi. फिर 4 cos 6x upon -35 pi and goes on. We will take commons outside. 4 सब जगह कॉमन है, माइनस सब जगह कॉमन है, पाई सब जगह कॉमन है, तो ले लेते हैं ना कॉमन बाहर. We'll take +4 upon minus, in fact 4 upon -pi को कॉमन लेते हैं. What remain inside is cos 2x upon 3. दूसरे टर्म में cos 4x upon 15. तीसरे टर्म में cos 6x upon 35 is what we get. हमने न्यूमरेटर से 4 कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से -pi. फर्दर मोर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उसको लिख लेना है. उसके बाद डिसीजन लेंगे कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है. 2/pi minus 4/pi. I've taken minus sign above. cos 2x upon, अब देखिए ये जो है ना 3 का 15 का 35 का क्या रिलेशन है समझ नहीं आ रहा है, अभी लिखते हैं. 3 का मतलब है 1 into 3. ओके. 15 का मतलब निकलेगा 3 into 5 एंड 35 का मतलब आपको समझेगा अभी 5 into 7. गेटिंग इट? अगर cos 8x होगा नेक्स्ट टर्म, पता है उसके नीचे क्या होगा? कैन यू मेक आउट नाउ? 1 into 3 पहले में हुआ, 3 into 5 दूसरे में हुआ, 5 into 7 तीसरे में हुआ. नेक्स्ट क्या होगा? 7 into 9. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ द सीक्वेंस गोज. देखिए ऐसा पढ़ते हैं इसको. 1 ऊपर 2 नीचे 3, 3 ऊपर 4 नीचे 5, 5 ऊपर 6 7, 7 ऊपर 8 9. सी 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9. सीक्वेंस बन गया. यही तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन इज आस्किंग अस. सी द क्वेश्चन आस्किंग अस, लुक बैक टू द क्वेश्चन. ये इसको डॉट फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन वो इनटू एक्चुअली 1 into 3 3 into 5 5 into 7 सब +1 +1 +1 हो रहे हैं और आंसर इक्वल टू हाफ प्रूफ करना है. तो वील कम बैक हियर. भाई हमें इसके जितने न्यूमरेटर्स है ना सबको 1 1 1 बनाना है. 1 बनाने के लिए सबसे बेस्ट x का वैल्यू cos के लिए 0 होता है. 0 डाल दो, cos 0 1 होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी. तो कर लेते हैं वैसा. cos को जैसे x को जैसे ही 0 डाला, लेफ्ट हैंड साइड साइन 0 हो गया. 2 upon pi minus 4 upon pi. और पूरा ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ से यहाँ अगर मैं कॉपी कर लूँ तो एवरी न्यूमरेटर टर्म हैज बिकम cos 0. सब न्यूमरेटर बन चुके हैं cos 0. एवरी न्यूमरेटर cos 0 cos 0 cos 0 एंड cos 0 वैल्यू 1 होती है. लेफ्ट हैंड साइड बाई साइन 0 का क्या हुआ? साइन 0 0 होता है. 2 upon pi minus 4 upon pi and it has now become, अब ये पूरा ब्रैकेट क्या बन चुका है? ये पूरा ब्रैकेट बन चुका है 1 upon न्यूमरेटर cos 0
has become 1. Another numerator cos 0 has become 1. मतलब सब जो टर्म है वो 1 बन चुके हैं. ये पूरा टर्म रिप्लेस होकर cos 6x नहीं बल्कि 1 हो गया. cos 8x नहीं बल्कि 1 हो गया. because cos zeros are 1. और सिंप्लीफाई करते हैं. भाई ये 2 बाई पाई को लेफ्ट हैंड साइड लिया, माइनस 2 बाई पाई equal to minus 4 by pi. I have copied them same. I've copied them same here. Pi goes cross multiply to 2. Minus 4 goes cross multiply in the denominator. Minus and minus तो cancel होता है. ये बन रहा है 2 pi upon 4 pi equal to पूरा ब्रैकेट सीरीज का सेम. भाई 2 pi upon 4 pi तो कैंसिल हो जाएगा. It will become half equal to the bracket. ये हमारा नंबर 1 डिडक्शन है. After getting the Fourier series, this is the first deduction they wanted us to get. ये तो मिल गया. भाई सेकेंड डिडक्शन क्या है? बड़ा प्रॉब्लम है यार. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. जब सेकेंड डिडक्शन भी आ जाता है तो 8 मार्क्स का प्रॉब्लम होता है. सेकेंड डिडक्शन में सेम सीरीज है बट स्क्वायर्स में है. स्क्वायर्स करना मतलब पार्सेवल्स आइडेंटिटी से सॉल्व होगा. यस, पार्सेवल्स आइडेंटिटी सॉल्व होगा. तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. बाय राइटिंग बाय पार्सेवल्स identity, we have to now follow Parseval's identity. Parseval's identity क्या होती थी याद दिला देता हूँ. It used to be for half range 1 upon L integration 0 to L. The function inside used to be fx, उसका स्क्वायर होता है dx equal to a0 square plus half summation from 1 to infinity. पहले मैं बेसिक पार्सेवल्स लिख रहा हूँ. क्या है? an square. This is the basic Parseval's identities formula for a half range cosine series. अब according to this problem L की जगह आ जाएगा pi, so it's 1 upon pi. इंटीग्रेशन का लिमिट भी 0 to pi हो जाएगा. फंक्शन दिया था sin x, that is sin x का स्क्वायर dx. a0 का वैल्यू था 2 by pi. You can go back and see. ये देखिए a0 का वैल्यू 2 by pi. तो a0 का वैल्यू 2 by pi से बन जाएगा 4 by pi स्क्वायर. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज, ये समेशन 1 to infinity पूरा एक साथ नहीं हो सकता. आपको पहले हाफ a1 स्क्वायर अलग करना पड़ेगा. You have to start summation from 2 to infinity and then write an square. an square. Did I forget half? Yes, I forgot half. तो इसमें से हाफ a1 स्क्वायर वी हैव टू रिमूव एंड हाफ के बाद 2 से इंफिनिटी समेशन स्टार्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. इन द मीन टाइम लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम 1 अपॉन पाई. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi. The function of integration is sin square x dx. Then 4 by pi square, this is all right, plus half into, भाई a1 का वैल्यू तो 0 है. yes, it is 0, plus half into, अब summation we have to start from 2 towards infinity. an क्या था? an के लिए पीछे जाना पड़ेगा. an टर्म, इतना बड़ा an टर्म है. yes, ये पूरा बड़ा सा an टर्म है. डोंट फॉरगेट इसको स्क्वायर करना है. तो एक एक क्वांटिटी स्क्वायर करते हैं. -1 raised to n plus 1 स्क्वायर. पाई का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, राइटिंग इट एज 4, एंड 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का भी स्क्वायर. Every term got to be squared. So there are 4 terms. -1 raised to n plus 1, it has to be squared. Pi had to be squared. 2 had to be squared. 1 square minus n square का भी square. Next step पर simplify करेंगे. Now we have 1 upon pi. Sin square cannot be integrated. To integrate sin square, we'll have to convert. Sin square का एक conversion होता है. 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2x upon 2. तभी इंटीग्रेशन होगा. साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है. साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है 1 minus cos 2 theta upon 2. We'll do the integration in the next step. 4 upon pi square plus.
अब ये समेशन ओपन करने से पहले आई विल रिमूव 4 कांस्टेंट आउटसाइड, पाई स्क्वायर कांस्टेंट आउटसाइड, तो थोड़ा बेटर दिखेगा, थोड़ा इजियर दिखेगा. तो it 4 upon pi square, and summation will have from 2 towards infinity, and inside the summation numerator minus 1 raised to n plus 1 the whole square upon denominator 1 minus n square का स्क्वायर. ओके, समेशन ये अपना रेडी है. अगले स्टेप में फिर इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे फर्दर. वी गेट 1 अपॉन भाई 2 को बाहर रिमूव कर देंगे, 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा. और अब एक एक इंटीग्रेशन करते हैं. 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, एंड द लिमिट्स नीडेड टू बी पुट 0 टू पाई, सॉरी, लिमिट्स नीडेड टू बी पुट 0 टू पाई. तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, देन 4 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये मैं नहीं 4 अपॉन, सॉरी फॉरगॉट 2 पाई स्क्वायर, बाहर 2 भी था, तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर कॉपी सेम. उसके बाद प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर आई शुड कॉपी. और मैं अब समेशन ओपन करने जा रहा हूं. ये एक्सप्रेशन पूरा मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूं, एंड आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट n की जगह पर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, n की प्लेसेस पर 2, एक हुआ प्लस, वापस आई शैल कॉपी इट, n की जगह पर आई हैव गॉट टू राइट 3 इन प्लेसेस ऑफ n 3, फिर प्लस वन मोर टाइम आई मस्ट राइट इट, एक और बार लिखते हैं. तो n की जगह पर 4, n की जगह पर 4 प्लस, एंड दैट इज ऑल. बस 3 भी लिख लिया ना, तो वी अंडरस्टैंड हाउ द सीरीज इज गोइंग टू बिहेव. तो वी हैव कॉपीड दैट समेशन, और n की जगह पर 2, n की जगह 3, n की जगह 4, 5, 6, 7, इट विल गो ऑन लाइक दैट. लेफ्ट हैंड साइड जब तक लिमिट्स डालते हैं, वी हैव 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई, x की जगह लिमिट पुट किया पाई, माइनस साइन ऑफ 2 पाई 0 होता है, और लोअर लिमिट तो सबके सब 0 होती है. So there is no point in substituting other limits. We put x equal to pi, we get a pi, but sine of 2 pi is a 0 value. X की जगह 0 becomes 0. Sine of 0 is a 0 value. So all those things become 0. Next we have 4 upon pi square plus 2 upon pi square. We copy them same. अब ब्रैकेट के अंदर जरा सिंप्लीफाई करते हैं. पहला टर्म -1 का स्क्वायर हो रहा है 1, 1 plus 1 2 हो रहा है, और फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बिकम 4. What about denominator? 1 minus 2 square मतलब 1 minus 3 होता है. 1 minus 3 का square is, we'll write 1 minus 4 मतलब minus 3, and minus 3 is square. Okay, don't make it 9, let it be minus 3 square. The next term minus 1 cube becomes a minus 1, and minus 1 plus 1 becomes a 0. So the term becomes 0. After that the next term, 0 के बाद next term, minus 1 raised to 4 हो रहा है, 1, 1 plus 1 2, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? इसके डिनोमिनेटर में 1 minus 16 हो रहा है. 1 minus 16 is minus 15, and this also we write square. फिर अगर नेक्स्ट सॉल्व किया ना, नेक्स्ट सॉल्व किया तो 0 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सॉल्व किया तो 4 अपॉन, इट इज गोइंग टू बिकम 1 minus 6 का स्क्वायर विच इज minus 35, एंड इट्स स्क्वायर. ये इस तरह से सीरीज चलती जाएगी. हमने पहले भी जैसे बनाया, एक -3 होता है, दूसरा -15, -35, और आगे -63, एंड सो ऑन इट गोज. और सिंप्लीफाई करते हैं. वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पाई अपॉन 2 पाई, बस ये बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू स्टिल 4 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन पाई स्क्वायर, ये सब तो सेम है. वी गेट 4 अपॉन, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये बचेगा 3 स्क्वायर. फिर 4 अपॉन माइनस कैंसिल हो जाएगा 15 स्क्वायर. आफ्टर दैट 4 अपॉन 35 स्क्वायर, एंड सो ऑन. हमने माइनस साइन को कैंसिल आउट कर दिया स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर माइनस साइन को कैंसिल कर देगा. व्हाट मोर, वी गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन 2 and minus 4 upon pi square. I have taken 4 upon pi square left hand side, equal to, न्यूमरेटर से सारे 4 निकालते हैं तो ये बनेगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर.
इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन, अब देखिए डिनोमिनेटर को कैसे लिखते हैं। 3 स्क्वायर को मैं लिखता हूं 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 3 स्क्वायर। डेलिबरेटली जैसा क्वेश्चन को चाहिए वैसा लिख कर देना पड़ेगा ना। 1 अपॉन 15 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर को। वैसे ही 1 अपॉन 35 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। So deliberately we have to write it like this because this is the demand of the question. वो 3 स्क्वायर नहीं चाहता है, वो लिखता है 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखो, मतलब तो वही हो गया। 15 स्क्वायर नहीं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखो, बात तो वही हो जाएगी ना। 35 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिखो। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पाई स्क्वायर गोज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर वन टर्म बिकम पाई स्क्वायर माइनस 2 4s has become 8 upon denominator has become 2 pi square equal to, बाकी सब सीरीज वाला टर्म परफेक्ट है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, इसको तो सेम कॉपी करो। वी सी दैट पाई स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर दोनों आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे और 8 आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो व्हाट डज द आंसर बिकम, भाई अब आंसर बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाई 16 और इक्वल टू वाली सीरीज ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड डिडक्शन था।